हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स इंग्लिश बुक 1 का लेसन नंबर 14 स्टीलिंग एंड एटोनमेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 14 स्टीलिंग एंड एटोनमेंट, चोरी और प्रायश्चित। In this lesson, you will read a few extracts from Gandhiji's autobiography, My Experiments with Truth. What does he reveal about himself? Were his childhood and teenage years like yours? Was he always truthful, or did he learn to be truthful? Did he find it difficult to be truthful? Find out how he became convinced of the positive consequence of being truthful. हम इस पाठ में आप गांधी जी की आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के कुछ अर्थ पढ़ेंगे। वो अपने बारे में क्या बताते हैं? क्या आपका बचपन और किशोर अवस्था आपके जैसा था? मतलब कह रहा है कि उनका बचपन हमारे बचपन जैसा था। इनका बचपन, गांधी जी का बचपन। क्या वह हमेशा सच्चे थे या उसने सच्चा होना सीख लिया था? क्या उससे सच्चे होना मुश्किल था? पता करें कि वह सत्य होने का सकारात्मक परिणामों के प्रति आश्वस्त कैसे हुए। ये किनके बारे में कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है गांधी जी के बारे में। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेट अस रीड द टेक्स्ट। हमें पाठ पढ़ें। A relative and I became fond of smoking. Not that we were any good in smoking or were very fond of the smell of a cigarette. We simply imagined a sort of pleasure in emitting clouds of smoke from our mouths. My uncle had the habit, and when we saw him smoking, we thought we should copy his example. But we had no money, so we began to collect stubs of cigarettes thrown away by my uncle. एक रिश्तेदार और मैं धूम्रपान के शौकीन बन गए। ऐसा नहीं है कि हमने धूम्रपान में कोई अच्छा देखा या सिगरेट की गंध के बहुत शौकीन थे। हमने बस अपने मुंह से धुएं के बादलों को छोड़ने में एक तरह की खुशी की कल्पना की थी। मेरे चाचा की आदत थी और जब हमने उन्हें धूम्रपान करते देखा तो हमने सोचा कि हमें उनके उदाहरण की नकल करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम अपने चाचा द्वारा फेंकी गई सिगरेट की ढेर इकट्ठा करने लगे। ये कौन कर रहे हैं? तो गांधी जी कर रहे हैं। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। The stubs, however, were not always available and could not emit much smoke either. So we began to steal coins from the servants' pocket money in order to purchase Indian cigarettes. In the meantime, we heard that the stalk of a certain plant were porous and could be smoked like cigarette. We got them and began this kind of smoking. हालांकि स्टब्स हमेशा उपलब्ध नहीं थे और बहुत धुएं का उत्सर्जन भी नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने भारतीय सिगरेट खरीदने के लिए नौकर की जेब से पैसे चुराए। इस बीच हमने सुना कि एक निश्चित पौधे के डंठल चिरकुन थे और सिगरेट की तरह धूम्रपान किया जा सकता था। हमने उन्हें प्राप्त किया और इस तरह का धूम्रपान शुरू किया। आइए आगे बढ़ते हैं। But we were far from being satisfied with the such things as this. Our wanted of independence began to upset us. It was unbearable that we should be
unable to do anything without the permission of our elders. At last, instead disgust, we decide to commit suicide. कहता है कि लेकिन हम इन बातों से संतुष्ट होने से बहुत दूर थे। आजादी की हमारी चाहत हमें परेशान करने लगी। यह असहनीय था कि हमने अपने बड़ों की अनुमति के बिना कुछ भी करने में असमर्थ होने चाहिए। अंत में सरासर घृणा में हमने आत्महत्या करने का फैसला किया। ये किसने आत्महत्या करने का फैसला किया? तो गांधी जी ने और उसके एक रिश्तेदार ने, जो उनके साथ सिगरेट पीता था। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट हाउ वेयर वी डू टू डू इट, फ्रॉम where we to get the poison. We hear that Dhatura seeds were an effective poison. Of we went to the jungle in search of these seeds and we got them. Evening was thought to be an auspicious hour. We went to Kedarji Mandir, put ghee in the temple lamp and the darshan and had a darshan and then looked for a lonely corner, but our courage failed us. Supposing we were not instantly killed, and what was the good of killing ourselves? Why not rather put up with the lack of independence, but we swallowed 2 or 3 seeds? Nevertheless, we dared not take more. Both of us fought sigh of death and decided to go to Ramji Mandir to compose ourselves and to dismiss the thought of suicide. आइए अब हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम यह कैसे कर रहे थे? हमें जहर कहाँ से मिला? हमने सुना कि धतूरे के बीच एक प्रभावी जहर थे। हम इन बीजों की तलाश में जंगल में गए और हमने उन्हें पा लिया। शाम को शुभ मुहूर्त माना जाता था। हम केदार जी मंदिर गए, मंदिर में दीपक में घी डाला, दर्शन किए और फिर एक कोने में बैठ गए। जो एक कोना, यहाँ पे मतलब शांति भरा कोना था ना, वहां पे वो लोग बैठ गए। कौन बैठ गए? वो एक रिश्तेदार था गांधी जी का, वो और खुद गांधी जी, दोनों वो एक शांति जहाँ पे मतलब कोई आता जाता ना हो, उस ऐसे कोने में वो दोनों बैठ गए। लेकिन हमारी हिम्मत ने हमें नाकाम कर दिया। माना कि हम तो नहीं मर गए, वो सोचे मतलब कि अगर खाने का लोग नहीं मरे तो क्या होगा। और फिर बोलते हैं खुद को मारने से अच्छा क्या था? खुद को मारने से अच्छा क्या था? अ, स्वतंत्रता की कमी के साथ क्यों नहीं रखा गया? लेकिन हमने 2 या 3 बीज फिर भी निगल लिए। और ऐसा सोचते सोचते जो है वो 2 या 3 बीज जो है निकल जाते हैं। कौन? दोनों मिलकर। हमने और अधिक नहीं लेने का साहस किया। हम दोनों ने मौत से लड़ते हुए राम जी मंदिर जाने को, खुद को आत्महत्या का विचार खारिज करने का फैसला किया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। I realized that it was not as easy to commit suicide as to think about it. The thought of suicide ultimately resulted in both of us bidding goodbye to the habit of smoking stubs of cigarette and of stealing the servant copper for the purpose of smoking. मुझे एहसास हुआ कि आत्महत्या करना इतना आसान नहीं था जितना कि इसके बारे में सोचना। आत्महत्या के विचार के परिणाम स्वरूप आखिरकार हम दोनों ने सिगरेट के धुएं की आदतों को छोड़ दिया और धूम्रपान करने के उद्देश्य से नौकर के कॉपर यानी जो तांबा का सामान था उसको चुरा लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। Ever since I have grown up, I have never desired to smoke and always regard the habit of smoking as barbarous, dirty, and harmful. I have never understood why there is such
rate for smoking throughout the world. I cannot bear to travel in a compartment full of people smoking. I become shocked. जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी धूम्रपान करने की इच्छा नहीं की है और हमेशा धूम्रपान की आदत को बड़बड़, गंदा और हानिकारक माना है। मैं कभी नहीं समझ पाया कि दुनिया भर में धूम्रपान के लिए इतना हंगामा क्यों है। मैं धूम्रपान करने वाले लोगों से भरे डिब्बे में यात्रा करने के लिए सहन नहीं कर सकता। मैं मतलब उनका जो गला है वो चॉक्ड हो जाता है, यानी कि दम घुटने लगता है। बोलते हैं कि मेरा जो है गला ऐसी जगह पे घुटने लगता है, दम घुटने लगता है। किनका? गांधी जी का। अब आइए आगे पढ़ते हैं। But much more serious than this was the theft. I was guilty of a little later. I stole the coins when I was 12 or 13, possibly less. The other theft was committed when I was 15. In this case, I stole a bit of gold out of my brother's armlet. This brother had run into a TV of about 25 rupees. He had on his arms an armlet of solid gold. It was not difficult to clip a bit out of it. अब आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा गंभीर बात यह थी कि चोरी में थोड़ी देर के लिए दोषी था। मैं सिक्के चुराता था जब मैं 12 या 13 था। संभवतः शायद बोल रहे हो जो वो 12 या 13 के होंगे, या फिर उससे कम भी हो सकते हैं। जब मैं 15 वर्ष का था तो दूसरी चोरी की घटना हुई। इस मामले में मैंने अपने भाई के शस्त्रागार से थोड़ा सा सोना चुरा लिया। यह भाई करीब 25 रुपए के कर्ज में चला गया था। उसके हाथ में ठोस सोने का कवच था। इसमें से थोड़ा सा क्लिप करना मुश्किल नहीं था। क्लिप करना मुश्किल था मतलब कि निकालना, उसमें से थोड़ा सा सोना निकालना मुश्किल नहीं था। Well, it was done, and the debate cleared. But this became more than I could bear. I resolved never to steal again. I also made up my mind to confess it to my father, but I did not dare to speak. Not that I was afraid of my father beating me. No, I do not recall his ever having beaten any of us. I was afraid of the pain that I should cause him, but I felt that the risks should be taken, that there could not be cleansing without a confession. खैर, यह किया गया था और कर्ज साफ हो गया, लेकिन यह जितना मैं सहन कर सकता था उससे कहीं अधिक हो गया। मैंने एक संकल्प लिया कि फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। मैंने इससे अपने पिता के सामने स्वीकार करने का मन बना लिया, लेकिन मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा नहीं कि मैंने अपने पिता की पिटाई से डरता था। नहीं, मुझे याद नहीं कि उसने कभी हम में से किसी को पीटा हो। मैं उस डर से डरता था जो मुझे उसके कारण होना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि जोखिम उठाना चाहिए कि बिना स्वीकारोक्ति के सफाई नहीं हो सकती। अब आइए आगे पढ़ते हैं। I decide at last to write out the confession to submit to my father and ask for his forgiveness. I wrote it on a slip of paper and handed it to him myself. In this, not only did I confess my guilt, but I asked adequate punishment for it and closed with a request to him not to punish himself for my offense. I also pledged myself never to steal in future. अब कहता है, मैंने अपने पिता को प्रस्तुत करने और उनकी क्षमा मांगने के लिए अंतिम बार निर्णय लिया। मैंने इसे कागज की एक पर्ची पर लिखा और खुद उसे सौंप दिया। किसे सौंप दिया? अपने पिता को सौंप दिया। इसमें न केवल मैंने अपने अपराध को स्वीकार किया, बल्कि मैंने इसके लिए पर्याप्त सजा मांगी और अपने अपराध के लिए खुद को दंडित नहीं करने के अनुरोध के साथ बंद कर दिया। मैंने भविष्य में कभी भी चोरी न करने का वचन दिया। किसने दिया? गांधी जी ने।
किससे को दिया? अपने पिताजी को दिया। I was trembling as I handed the confession to my father. He was then confined to bed. His bed was plain wooden plank. I handed him to the note and sat opposite the plank. मैं काँप रहा था क्योंकि मैंने अपने पिता को स्वीकार कर लिया था। मतलब वो अपनी गलतियों को अपने पिता से स्वीकार कर लिए थे। वह तब बिस्तर तक ही सीमित था। उस टाइम जो है उनके जो फादर थे वो बिस्तर के पास थे। मतलब शायद वो सोने जा रहे होंगे। तब जो है क्या होता है, उनका बिस्तर जो है एक सादा लकड़ी का तख्त था। मैंने उसे नोट सौंपा और तख्त के सामने बैठ गया। वो कहते हैं वो अपने नोट जो उन्होंने लिखा था वो अपने पिता को दे देते हैं और वो बैठ जाते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। He read it through, and tears trickled down his cheeks, wetting the paper. For a moment, he closed his eyes in thought and then tore up the note. He had set up to read it. He lay down again. I also cried. I could see my father's agony. If I were painted, I could draw a picture of the whole scene today. It is still so vivid in my mind. उसने इसे पढ़ा और उस और आंसू उसके गालों को चीरते हुए कागज को गीला कर दिया। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर नोट को फाड़ दिया। वह उसे पढ़ने के लिए उठ बैठा था। वह फिर से लेट गया। मैं भी रो पड़ा और अपने पिता का पीड़ा देख सकता था। अगर मैं एक चित्रकार होता तो मैं आज पूरे दृश्य की तस्वीर खींच सकता था। यह अब भी मेरे दिमाग में इतना ज्वलंत है। Those tears of love cleansed my heart and washed my sin away. Then I could read in it nothing more than a father's love. But today I know that it was pure uh, ahimsa. When there is such ahimsa, it changes everything it touches. There is no limit to its power. प्यार के उन आंसुओं ने मेरे दिल को साफ कर दिया और मेरे पाप को धो दिया। तब मैं इसमें पढ़ सकता था पिता के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन आज मुझे पता है कि यह शुद्ध अहिंसा थी। जब इस तरह की अहिंसा होती है तो यह सब कुछ छू लेती है। इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। This kind of sublime forgiveness was not natural to my father. I had thought that he would be angry, say hard things, and strike his forehead, but he was so wonderfully peaceful, and I believe this was due to my clean confession, a clean confession combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. I know that my confession made my father feel absolutely safe about me and increased his affection for me beyond measure. इस तरह की उद्दत क्षमा मेरे पिता के लिए स्वाभाविक नहीं था। मैंने सोचा था कि वह गुस्सा होंगे, कठोर बातें कहेंगे और अपने माथे पर प्रहार करेंगे, लेकिन वह बहुत आश्चर्यजनक रूप से शांत थे और मेरा मानना है कि यह मेरे स्वकीरोक्ति के कारण था। एक स्वच्छ स्वीकारोक्ति जो फिर कभी पाप करने का वादा नहीं करती, पश्चाताप का शुद्धतम प्रकार है। मुझे पता है कि मेरे कबूलनामे ने मेरे पिता को मेरे बारे में बिल्कुल सुरक्षित महसूस कराया और पाप से परे मेरे लिए उनके स्नेह को बढ़ा दिया। इस तरह से जो है ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब इनके राइटर जो हैं वो है मोहनदास करमचंद गांधी और ये एक
एडेप्शन है फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एडेप्शन मतलब होता है अनुकूलन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग से एक अनुकूल है। गांधी जी इसके राइटर हैं। अब आइए सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 14.1। यह है इंटेक्स क्वेश्चन 14.2। यह है इंटेक्स क्वेश्चन 14.3। कुछ ग्रामर सेक्शन भी दिए गए होंगे, उन्हें भी बनाने का कोशिश करेंगे। ये रहा क्या मेरा क्वेश्चन, और यहाँ पे आंसर दिया गया है। अगर अभी भी चैप्टर से कोई परेशानी हो या क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहा हो या कोई हार्ड वर्ड हो तो कमेंट में जरूर आकर पूछे, हम लोग उसे आंसर करने का प्रयास करेंगे। सारे का आंसर यहाँ पे दिखा दिया हूँ मैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल। थैंक यू।